A very pleasant good morning, my dear students. Children, today we are going to study a new chapter. That chapter number 8, Rural Livelihood. Okay, children? So come on, everyone, be ready with your book. Come on. So, children, in this chapter, now first tell me, what do you mean by rural? Rural means gaon, right? Villages. And what do you mean by livelihood? Children, livelihood means how people spend their lives. लोग अपना जीवन किस तरह बिताते हैं, वो कैसे रहते हैं, कौन सा काम करते हैं गांव में, ठीक है, किस तरह उनकी रोजी रोटी जो होती है वो चलती है, वो किस तरह से कौन सा काम करके वो पैसा अर्न करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय रूरल एंड लाइवलीहुड। Rural means villages, गांव, right? And livelihood means how people spend their life. Okay, लोग अपना जीवन किस तरह से बिताते हैं, वो कौन सा काम करते हैं, वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं, right? So children, just wait. I am sharing the screen. Yeah, see, this is our chapter number 8, and chapter name is Rural Livelihoods, right? Now see. ऑक्यूपेशन वाइज पीपल में बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। ओके, अभी गांव में ऑक्यूपेशन वाइज पीपल को डिवाइड कर दिया जाता है तीन ग्रुप्स में। दोज एंगेज इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ओके, एग्रीकल्चर, ओके, और प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या क्या आएगा चिल्ड्रन? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी ऑक्यूपेशन चिल्ड्रन? And that means the primary sector, it consists of those activity where people are engaged in extracting or harvesting things from the earth. For example, agriculture work, then fishing, then grazing, mining, and forestry. Okay, that means it includes the production of raw material and basic food. Clear? So these are the examples of primary occupation. Okay, for example, agriculture, fishing, grazing, mining, and quarrying. Now children, what do you mean by children? We know very well now the meaning of mining. That means the activities or the industries of removing substances, okay, such as coal or metal from the ground, okay, by digging, right? So that is mining. And what is quarrying children? That means quarrying is also the similar process of removing rocks, sand, or other minerals from the ground, okay, in order to use them to produce material or for construction, okay, or for other used also. Clear? And in secondary occupation children, see, secondary occupation means what? Secondary means the secondary sector, it consists of those activity which convert raw material. Raw material को convert किया जाता है, बनाया जाता है, right? Factories में. Okay, it manufacture goods. वो पूरी तरीके से तैयार होता है. For example, you can say the raw material from the cotton textile. Then industry comes from the cotton plant. So similarly, wheat is the main raw material which is needed, children, right, to make bread, cake, pizza, and biscuit, right? And the steel industry converts iron ore found in the raw state into natural to steel, right? So clear? So what do you mean by secondary children? That means which convert the raw material into manufactured goods. Okay? And what is and in tertiary occupation children? The tertiary occupation, it provided the services. Okay? And trade and commerce. Now services, we know that means it provide different services. Now what do you mean by trade and commerce children? That means the buying and selling of goods, okay, between two or more parties, okay, that means the trading activities, and banking and insurance also. So people who are engaged in primary occupation will be discussed in this chapter. So here children, there are three different sectors, okay, three different occupation. One is primary occupation, secondary occupation, and tertiary occupation, okay. But people who are engaged in primary occupation, that only we are going to discuss in this chapter, and rest secondary and tertiary occupation we are going to discuss in the next chapter. Clear children? So we will find out the different ways in which people earn their living in villages
टुडे। ओके, सो ऐसे कौन से अलग अलग तरीके हैं, ओके, जिससे लोग कौन सा काम करते हैं गांव में, जिससे उनको पैसा मिलता है, वो पैसा कमाते हैं। अंडरस्टूड? तो ऐसे कौन से काम गांव में किए जाते हैं, ओके, जिससे उनका जो रोजी रोटी, जो उनका गुजारा होता है, ओके, एंड दे आर लिविंग इन विलेजेस टुडे। Clear? Now see children, now we will discuss one story also. It is a story of one village, that is, and the name of the village is Dumri, and this Dumri is village is in Bihar. Clear? So where is Dumri, children? It is in Bihar. Okay? Yes. So see children, now Dumri is a village that is in Bihar. There are different ways in which people earn their living here. Some villages work in farm, others are engaged in masonry, pottery, brick making, basket making and carpentry. So see children, now there are different ways in which people earn their living. So ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लोग ऐसे काम करते हैं जिससे उनको पैसा वो अर्न करते हैं। ओके, कुछ एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, खेती का काम करते हैं, ओके, फील्ड पे काम करते हैं, और कुछ जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज मीन्स खेती से हटकर जो है दूसरे जो काम लोग करते हैं, ओके, वो होता है मशीनरी, पॉटरी, ब्रिक मेकिंग, बास्केट मेकिंग एंड कारपेंट्री। ओके, नाउ others are non farm activity. Masonry means what children? We know very, you must know that bricks and the piece of stone that are used to make building, right? That means for construction of building. Okay, it is the work of masonry. Then pottery children, of making of pot, dishes, right? Then this type of work which peoples are doing in the villages. Then even brick making. What do you mean by brick children? ईट जो होता है वो बनाते हैं. Basket making, right? So people are making basket of bamboo sticks also, right? And even carpentry work also. So these are some non-farm activities which peoples are doing in the villages. Okay, so this will not be counted in farm activity, right? So this is non-farm activities. Now even some people, they provide services also, right? For example, teachers, washermen, barbers and cycle repair machines. And even you can see different services also children, for example blacksmith, even weavers, nurse, these all of them are providing services to the people, right? Teachers we very well know. Then in washermen जो धोबी होते हैं, even barbers जो बाल काटते हैं, जो नाई होते हैं children, right, जो बाल दाढ़ी वगैरह काटते हैं, then even जो साइकिल रिपेयर करते हैं, ओके, इस तरीके की जो सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड की जाती है, राइट? सो इससे भी लोगों की अर्निंग होती है। नाउ इवन देयर आर सम शॉपकीपर आल्सो, और कुछ शॉपकीपर भी होते हैं, राइट? एंड इवन देयर आर फ्यू small pakka houses on the main street, okay, which sell sweets, feed, meat, fish, egg, utensils, okay, then bangles. Clear? So children, वहां पे कुछ पक्के, okay, हाउ शॉप्स होते हैं, okay, बनाए गए, okay, मीन्स परमानेंट एंड सॉलिड जो घर बनाए जाते हैं, okay, उसको हम पक्का, जैसे हाउस या शॉप है ये ऑन द, और ये एकदम रोड पे होते हैं ऑन द मेन स्ट्रीट। और वो लोग, वो शॉप किसकी होती है, वो क्या बेचते हैं, वो स्वीट्स बेचते हैं, मीट की शॉप होती है, फिश की शॉप होती है, दे सेल एग, यूटेंसिल जो बर्तन वगैरह, इवन बैंगल्स। ओके, सो देर आर फ्यू स्मॉल पक्का शॉप्स ऑन द मेन स्ट्रीट वी सेल स्वीट, फिश, मीट, एग्स, यूटेंसिल्स एंड बैंगल्स। ओके, नाउ सी, ओके, सो इस तरीके के छोटे घर, पक्के घर बनाकर लोग रहते हैं, और जो है थिंग्स, सामान जो है वो बेचते हैं। इवन ग्रोसरी शॉप इज ऑल्सो देयर, इवन मेडिसिन शॉप, इवन क्लोथ, फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स shops are also there. Now even there are 2 tea shops that sell samosa. Okay, अभी वहां पे 2 टी शॉप है, ओके, जो क्या बेचते हैं, 2 टी shops, they sell samosa and jalebis. Next to these shops lives a carpenter family who home serves as a workshop. Okay, now next to these shops lives कौन रहता है, कारपेंटर की फैमिली रहती है, ओके, whose home serve as a workshop. ओके, वर्कशॉप की तरह वो काम करते हैं, उनका जो घर है। दे यूज सीसम वुड एंड वुड फ्रॉम मैंगो ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर्स। ओके, वो कौन सी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, सीसम की जो लकड़ियां होती हैं वो,
और इवन फ्रॉम द मैंगो ट्रीज ऑल्सो फॉर मेकिंग फर्नीचर सच एज, और उससे क्या क्या वो बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेयर्स एंड बेड्स. ओके, नाउ अ फ्यू स्टेप अवे द पॉटर कुमार ऑल्सो वर्क फ्रॉम दिस होम. कुमार, पॉटर को क्या कुमार कहा जाता है ना चिल्ड्रन, राइट? वो भी है जो क्या काम करते हैं, वो घर से ही पॉट्स बनाने के वो काम करते हैं. अंडरस्टूड? थोड़ी ही दूरी पे. ही मेक पॉट्स ऑफ वेरियस साइज एंड शेप्स फ्रॉम द क्ले. और वो पॉट किससे बनाते हैं? फ्रॉम द क्ले. ओके, अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप के वो क्ले, सॉरी, पॉट बनाते हैं. अंडरस्टूड? ही ऑल्सो मेक स्मॉल टाइल्स विच आर यूज टू बिल्ड रूफ्स. ओके, वो कुछ स्मॉल स्मॉल टाइल्स भी बनाते हैं जो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? जो घर की छत होती है, जो रूफ चिल्ड्रन, उसके लिए यूज की जाती है. ओके, स्मॉल स्मॉल टाइल्स दे आर यूज टू बिल्ड roofs. Clearly? Now the person who helps the villages across the river is called a mallah. Okay, अभी जो पर्सन हेल्प करता है विलेजर्स को, जो एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने की, जो थ्रू रिवर जो पहुंचाने की मदद करते हैं, वो होते हैं मल्लाह, जिसको हम लोग इंग्लिश में चिल्ड्रन कहते हैं बोटमैन. अंडरस्टूड? इवन ये बोटमैन भी हो सकते हैं, कुछ फिशरमैन भी हो सकते हैं. अंडरस्टूड? So that mallah means boatman, of you can say fisherman also, who help the peoples, okay, to cross the river. And he's, और उनका नाम क्या बताया गया है चिल्ड्रन उस बोटमैन का? उसका नाम बोला गया है इवन पट्टू. ओके, ही ऑल्सो कैचेस फिश फ्रॉम द रिवर. और वो और भी क्या करते हैं? वो फिश पकड़ते हैं. कहाँ से? वो रिवर में से. ओके, नाउ अदर वेज ऑफ ट्रेवलिंग इन दिस विलेजेस आर बाय रिक्शा और हॉर्स कार्ट. अंडरस्टूड? ना, और भी बहुत तरीके हैं कि एक जगह से अगर हमें दूसरी जगह ये क्रॉस जाना है, तो उसके लिए लोग ट्रैवल किससे करते हैं? या तो वो रिक्शा से जाते हैं, या घोड़ा गाड़ी जो होती है उससे भी लोग ट्रैवल करके जाते हैं. ओके, नाउ रिक्शा पुलर्स and horse cart drivers, rickshaw, yeah, pullers and horse cart driver take people to nearest city and the railway station. Okay, so जो रिक्शा पुलर्स होते हैं, जो रिक्शा चलाने वाले पर्सन होते हैं, और जो हॉर्स कार्ट, जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, ओके, वो क्या करते हैं? लोगों को जो भी सिटी में, पास के सिटी में लोगों को जाना है, वो वहां तक लोगों को पहुंचा देते हैं. अंडरस्टूड? सेफली टेक पीपल टू द नियरेस्ट सिटी एंड द रेलवे स्टेशन. अगर मीन्स यहाँ पे अगर किसी को कोई भी जगह जाना है, तो उसमें लोगों की मदद कौन करता है? जो है रिक्शा पुलर्स एंड हॉर्स कार्ट. क्लियर? और इवन चिल्ड्रन वी हैव सीन द, अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रिवर क्रॉस करना है, तो उसमें कौन मदद करता है? दैट इज मल्लाह. अंडरस्टूड? नाउ द विलेज इज सराउंडेड बाय द फील्ड ऑफ वीट्स, राइस, शुगर केन एंड कॉर्न. अभी ये जो विल है, विलेज है, सॉरी, उसके आसपास पूरे हमें क्या नजर आती है? पूरी खेती है. और वो खेती किस क्या क्या चीजें वहां उगाई जाती है? वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉर्न. इवन चना एंड दाल आर ऑल्सो ग्रोन. Vegetables such as potatoes, brinjals, tomatoes, and onion are also grown over here. Okay, and flowers such as marigold and roses are grown all over the villages. And they are sold also. Now the villages is surrounded by the field of wheat. Now we very well know that wheat means गेहूं उगाए जाते हैं, राइस उगाए जाते हैं, जो चावल हम कहते हैं, शुगर केन जो होता है चिल्ड्रन, जो गन्ना जिसको हम कहते हैं, इवन कॉर्न. ओके, ये सारी चीजें गांव में उगाई जाती है. ओके, इवन जो चना होता है, दाल, ओके, ये सारी चीजें उस फार्म पे उगाई जाती है. और वेजिटेबल्स कौन कौन से यहाँ पे हमें उगाए जाते हैं? सच एज पोटैटो, ब्रिंजल्स, ओके, टोमेटो एंड ऑनियन. और कौन से फ्लावर्स यहाँ लोग उगाते हैं चिल्ड्रन? दे आर मेरीगोल्ड एंड रोसेस आर ग्रोन ऑल ओवर द विलेजेस. सारे विलेजेस में अगर आप देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे आपको कौन से फूल मिलेंगे? मेरीगोल्ड एंड रोजेस. ओके, now they are sold. Okay, so children, see this pictures very well. You can see the shops. Okay, okay, a tea stall in Dumri village. Okay, जो टी स्टॉल है, ओके, जहाँ पे लोगों को चाय मिलती है, और कुछ बिस्किट्स या समोसा वगैरह जहाँ पे लोगों को मिलती है, वो यहाँ शॉप पे पिक्चर भी दिखाई गई है. राइट, अ टी स्टॉल इन डुमरी विलेज. सो चिल्ड्रन, दे आर दिस फ्लावर्स दे आर सोल्ड इन द सिटीज ऑल्सो. ये जो फूल है वो लोग सेल करते हैं. कहाँ पर बेची जाती है ये सारी चीजें? सिटीज में. राइट, नाउ मोस्ट फैमिली अर्न देयर लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर. और बहुत सारी फैमिलीज जो गांव में होती है, क्योंकि गांव में सबसे मेन ऑक्यूपेशन तो चिल्ड्रन एग्रीकल्चर का होता है. राइट, most some people go to nearby town to work as construction workers
एंड लॉरी ड्राइवर्स. ओके, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कुछ एक शहर से दूसरी जगह जाते हैं काम के लिए. अंडरस्टूड. सम पीपल गो टू नियर बाय टाउन टू वर्क एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे लोग काम करने जाते हैं, या लॉरी ड्राइवर्स. ओके, क्योंकि खेती का काम चिल्ड्रन साल भर तो होता नहीं है, राइट. बट उनको अपना लाइफ तो बिताना है, राइट. उनके पास पैसे तो आना चाहिए, उनकी डेली लाइफ उनकी अच्छी तरीके से चले. ओके, उनके खर्चे तो होंगे, इसके लिए उनको काम तो चाहिए. तो अगर खेती का काम साल भर नहीं रहता है तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जो आसपास के टाउन सिटी होते हैं वहां चले जाते हैं काम ढूंढने के ओके उसमें, और वहां पर वो जाकर काम करते हैं. Now, children, here we will discuss one story also. Okay. Now, it is the story. It is of Sugna. Understood? Now, I am a Sugna. Okay. I, along with Devi Kumari, Munni, Shanti, and others, work on Kashinath land. Okay. अब चिल्ड्रन ये जो स्टोरी हम सुनने जा रहे हैं ये सुगना की स्टोरी. ये एक लैंडलेस लेबर है. लैंडलेस लेबर मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, इनके पास इनकी खुद की जमीन नहीं है, ये किसी और की जमीन पे जाती हैं काम करने के लिए. ओके, और सुगना के साथ और कौन कौन जाता है वहां पर काम करने के लिए, देव कुमारी, मुन्नी, शांति एंड अदर्स, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जो बिग फार्मर्स है, जो काशीनाथ है उसकी जमीन पर ये सारे लोग काम करते हैं. अंडरस्टूड. नाउ ही हैज 20 एकर्स ऑफ लैंड इन डुमरी. अब ये कौन से गांव की बात कर रहे हैं हम चिल्ड्रन, डुमरी, जो कि बिहार में है, राइट. और ये काशीनाथ के पास इसकी जमीन कितनी बड़ी है, he is having 20 acres of land. Okay, on this he grow rice. यहाँ पे क्या उगाए जाते हैं, यहाँ पर जो राइस है जिसको हम धान कहते हैं, राइट. और इसको इवन पेडी क्रॉप्स भी कहा जाता है, राइट. सो ये जो है वो इनके खेती में उगाए जाते हैं. अभी सुगना क्या कह रही है चिल्ड्रन, बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क इन द शुगर केन फील्ड. अभी जब उनकी शादी सुगना की नहीं हुई थी तो वो शादी के पहले भी ये खेती का काम सारा करती थी. शी वॉज वेरी एक्टिव. ओके, और उस समय वो कौन सी खेती पे काम करती थी, वो शुगर केन के फील्ड पे वो काम करती थी, राइट. नाउ आई वर्क फ्रॉम 9 AM to 5 PM. ओके, और वो कितने से कितने समय तक काम करती है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बज जाते थे उसको इस फील्ड पर काम करते करते. आई डू नॉट हैव अ रेगुलर वर्क थ्रू आउट द ईयर. और इस जैसे खेती का काम तो चिल्ड्रन साल भर चलता नहीं है, राइट. सो इनके पास पूरे मीन्स इनके पास रेगुलर वर्क भी नहीं होता था. ओके, थ्रू आउट द ईयर. ओके, कुछ ही महीने जो है खेती का काम होता था. ओके, whenever there is work Kashinath call me. ओके, और जैसे चिल्ड्रन ओके, तो वो कुछ ही महीने वहां पे काम करती थी. आई डू नॉट हैव अ रेगुलर वर्क थ्रू आउट द ईयर. व्हेनेवर देयर इज अ वर्क काशीनाथ कॉल मी. और जब वहां पर काम होता था उस फील्ड पर, उस फार्म पर, तो जो काशीनाथ हैं, जो बिग फार्मर्स है, वो उनको बुला लेता था काम के लिए. ओके, नाउ काशीनाथ पेज ₹100 पर डे टू मेल्स एंड ₹50 पर डे टू फीमेल्स. अभी ये जो काशीनाथ है जिनकी जमीन है, राइट, वो लोगों को जो रखे थे काम करने के लिए, वो लोगों को कितना पे करते थे. अगर मेल पर्सन है, अगर कोई काम कर रहा है उनकी जमीन पर, तो उनको वो ₹100 पे करते थे. और अगर वहीं पे फीमेल हो तो उनको केवल ₹50 पे करते थे. ओके, सो वी हैव टू ट्रांसप्लांट पैडी क्रॉप्स. पैडी मीन्स राइस क्रॉप. ओके, उनको क्या उगाना पड़ता था वहां पे, पेडी. ओके, दैट मीन्स राइस क्रॉप वो उगाते थे. आफ्टर द प्लांट्स हैव ग्रोन वीट वी हैव टू डू द वीडिंग एंड लेटर आफ्टर द हार्वेस्टिंग. ओके, तो चिल्ड्रन जैसे वो जून मंथ में बारिश होती है तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं और वो ऐसे पॉट्स वगैरह में पहले उसको उगाते हैं, राइट. फिर कुछ महीने बाद चिल्ड्रन, 1-2 महीने बाद, अगर जैसे देखे ओके सितंबर एंड ऑल चिल्ड्रन, ओके, वो उसको अगस्त एंड सितंबर वो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं. वो जो पॉट, अगर जो प्लांट्स थोड़ा सा बड़ा हो गया, ओके, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उसको वो जाकर जो फार्म है, जो खेत है, उस पे जाकर उसको बेंड होकर कंटिन्यूसली उसको वो लगाते हैं. ओके, ट्रांसप्लांट करते हैं. ओके, पॉट से निकाल कर उस जगह पर खेत में वो लोग लगाते हैं. ओके, एक एक, और इसमें उनको बहुत ज्यादा समय लग जाता है. और इवन उनकी जो कमर है वो भी बहुत दर्द होने लगती है. ओके, बैक जो है वो बहुत ही दर्द होने लगता है लोगों का. ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क. ओके, देन ऑल्सो दिस फीमेल्स आर they have to do, okay, for earning. Now after the plants have grown a bit we have to do the weeding.
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वीडिंग चिल्ड्रन? टू रिमूव अनवांटेड प्लांट्स, ओके। अभी फर्स्ट जब उगती है खेत में तो उसके साथ कुछ घास फूस भी आ जाते हैं, ओके। जो घास वगैरह होते हैं वो तो नहीं चाहिए ना, राइट, तो उसको भी काट दिया जाता है, अंडरस्टूड। तो उसका होता है मतलब वीडिंग, ओके। जो रिमूव, दे रिमूव अनवांटेड प्लांट्स एंड लेटर द हार्वेस्टिंग, ओके। फिर फसलें जब पक जाती है तो उसको वो लोग काट देते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, अंडरस्टूड। सो दैट, so this is the process, okay। Now see children, it is a picture of Sugna, okay। Sugna at work in her house also, so वो अपने घर पर भी काम करती है। Now Baiju is another rich farmers, अभी ये जो है वो एक another rich farmer है, okay, who gets cheap labor from other village, कुछ और दूसरे गांव से उनको ओके चीप मीन्स कम दामों में लेबर्स मिल जाते हैं। वी वर्क ऑन द फार्म्स, और ये सभी लोग वहां पर काम करते हैं। नाउ वी आर कॉल्ड कोयरीज, और उनको क्या बुलाया जाता है वहां पर? कोयरीज। और ये सुगना जो है चिल्ड्रन, उनके हस्बैंड का नाम है लल्लन, ओके। वी नाउ माय हस्बैंड नेम इज लल्लन, ही डज नॉट ओन एनी लैंड, तो वो भी एक लैंडलेस लेबर, उनके पास भी उनकी खुद की जमीन नहीं है, ओके। और वो भी इस खेती में काम करते हैं, ओके, मीन्स दूसरी खेती में, जो किसकी है? बायजू, ओके ओके। बैजू जो है वो अनदर रिच फार्मर है, उसकी खेती पे ये सभी लोग काम करते हैं, ओके। माय हस्बैंड नेम इज लल्लन, ही डज नॉट ओन एनी लैंड, ही प्रिपेयर्स द फील्ड विथ हो, plows at the land, waters, okay, and manures it। ही ऑल्सो स्प्रिंकल पेस्टिसाइड जो होते हैं, ओके, जो फसलों पे कीड़े वगैरह ना लग जाए तो वो जो स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह भी, ओके। ये सारा काम कौन करता है? जो सुगना के हस्बैंड है लल्लन, वो ये सारा काम वो इस खेती पे करते हैं, अंडरस्टूड। नाउ व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म, ही हैज टू फाइंड द अदर वर्क्स लाइक मेकिंग ब्रिक्स, कैरिंग ब्रिक्स, बिल्डिंग रोड्स एंड हाउसेस, ओके। और अगर फार्म वर्क नहीं रहता है, खेती का काम उनको नहीं रहता है, ओके, किसी किसी महीने, तो वो दूसरा काम भी करते हैं, ओके। और वो कौन सा काम करते हैं? जैसे ब्रिक्स बनाना, उसको कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, रोड्स वगैरह बनाना, इवन हाउसेस, ये सारा काम वो करते थे, अंडरस्टूड। ना अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, आई ऑल्सो वर्क एट होम। अब ये सुगना कह रही है कि इवन मैं खेती में काम करती हूँ, उसके अलावा भी मैं जो घर का काम है वो सारा मतलब उनको संभालना पड़ता है। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस, वॉश क्लोथ, आई ऑल्सो गो विथ अदर्स वुमेन टू कलेक्ट फायरवुड, ओके। तो सुगना क्या कह रही है कि वो घर का खाना भी बनाती है, इवन शी क्लीन द हाउस, कपड़े धोने का काम, ये सारा काम किसका होता है? सुगना। आई ऑल्सो गो विथ अदर वुमेन्स टू कलेक्ट फायरवुड, ओके ओके। तो पहले चिल्ड्रन जैसे चूल्हे वगैरह पे खाना बनाना होता था तो उसके लिए क्या चाहिए होता था? लकड़ियाँ। तो ये सारे भी लोग वुमेन्स कुछ लोग मिलकर लकड़ियाँ लेने भी जंगल वगैरह में जाती थी, अंडरस्टूड। वी फेच वाटर फ्रॉम द वेल, इवन उनको कुछ दूर जब पर जाकर, ओके, वेल से जो कुएं हैं उसमें से वो पानी भी लेकर आती थी। सो देर आर 15 वेल्स इन द विलेजेस, और उनके गांव में डुमरे में पूरे कितने ओके वेल्स होते थे? पूरे 15 वेल्स होते थे, ओके। नाउ सम रिच पीपल हैव हैंड पंप्स इन देयर हाउस, और जो रिच पीपल होते थे, ओके, जो अमीर होते थे, ओके, मीन्स उस समय, सो उनके उनके घरों में खुद के एक हैंड पंप होते थे, अंडरस्टूड। मीन्स उनको दूर नहीं जाना पड़ता था कहीं भी पानी के लिए, उनको घर ही में उनके हैंड पंप लगे थे, जिससे उनको आराम से उनको फैसिलिटीज थी कि वो उनको पानी मिल जाता था। नाउ माय हस्बैंड गेट द ग्रोसरी फॉर द हाउस, घर की जो भी जरूरतों के सामान है वो जाकर बाहर से, मीन्स उनके जो हस्बैंड थे लल्लन, वो खरीद के लेकर आते थे, ओके। Now we have a son and daughter. They go to school and also help me with their household work. Sometimes they help in their fields. They also help in weeding the grass. They look after their cattle. Sometimes we prepare jaggery, that means good. Okay, जिसको गुड़ कहा जाता है. Okay, at home and sell it in the Dumri market to earn extra money. तो ये जो सुगना है और जो लल्लन है, उनको एक बेटा और एक उनको बेटी भी थी, ओके। वो दोनों लोग स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, और वो लोग इवन घर पे भी उनके पेरेंट्स की मदद करते थे, और समटाइम्स कुछ, ओके, वो लोग फील्ड में भी जाकर कभी कभी वो लोग मदद कर देती थी अपने पेरेंट्स की। दे ऑल्सो हेल्प इन वीडिंग, जो अनवांटेड ग्रास उग जाते थे, ओके, घास वगैरह, उसको भी काटने में वो लोग मदद करते थे। इवन दे लुक आफ्टर, जो घर में उनकी कैटल है, ओके, उसकी उसकी भी देखभाल वो लोग करते थे। और
कुछ कभी कभी वो लोग घर पे खुद ही जैगरी जो गुड़ होता है वो भी वो लोग बनाते थे, और उसको डुमरी जो वहां पे मार्केट होता था, वहां पे जो मार्केट लगता था वहां पर उसको बेच देते थे, कुछ एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम आए उनके पास, इसीलिए वो ये गुड़ घर पर बना के वो सेल करते थे जो डुमरी में मार्केट लगता था वहां पर। क्लियर? जस्ट वेट। नाउ लास्ट ईयर माई डॉटर फेल इल। ओके, अभी चिल्ड्रन ये गांव के पास गांव के लोगों के पास तो ज्यादा इनकम होता नहीं था, ओके, ज्यादा सेविंग्स वो लोग रखते नहीं थे, ओके, क्योंकि कुछ डेली बेसिस पे उनको पैसे मिलते थे, ओके, और दिन भर के उनकी डेली उसमें ही उनके सारे पैसे खर्च हो जाते थे, तो उनके पास ज्यादा ही सेविंग होती नहीं थी गाँव वालों के पास। नाउ लास्ट ईयर माई डॉटर फेल इल, देयर इज अ स्मॉल डिस्पेंसरी इन द विलेज विच हैज अ डॉक्टर एंड 2 नर्सेस। ओके, ऐसे बताया गया है कि चिल्ड्रन लास्ट ईयर उनकी जो डॉटर थी, लड़की थी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, ओके, और उनके गांव में एक डिस्पेंसरी है, ओके, और वहां पर एक डॉक्टर है और जो 2 नर्सेस हैं जो काम करती हैं, ठीक है। नाउ सिंस वी कुड नॉट मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द डिस्पेंसरी वी हैव टू बोरो मनी फ्रॉम काशीनाथ फॉर हर ट्रीटमेंट, ओके, सो उनके पास उतने पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, ओके, उसके इलाज के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो उनको क्या करना पड़ा, जो ये बिग फार्मर्स था काशीनाथ, जिनके जमीन पे वो लोग काम करते थे, उससे उनको मनी बोरो करना पड़ा, अंडरस्टूड, for her treatment. As you saw in the Sugna case, poor families in rural areas spend a lot of time every day collecting firewood, getting water, grazing their cattle, okay, and cleaning. Okay, so ये चिल्ड्रन अभी हमने किस किस के स्टडी पढ़ी है, किसकी स्टोरी पढ़ी है, सुगना की, राइट, वो एकदम पुअर फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं, राइट, इन्हें, और जो दिन भर का उनका जो पूरा टाइम है, इवन वी हैव सीन दैट 9 to 5, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वो लोग काम करते हैं खेती में, उसके बाद वो फायरवुड जो लकड़ियां वो कलेक्ट करके लाती हैं, वेल, ओके, कुएं के पास जाकर पानी ले आती है, इवन जो उनके पास कैटल है उसको चराने ले जाती हैं, ओके, चारा वगैरह फिर खिलाने में, कुकिंग एंड क्लीनिंग, खाना बनाने में, घर साफ सफाई करने में, इसी में उनका ज्यादा से ज्यादा पूरा समय बीत जाता है, ओके। Now, nearly 2/5 of rural families in our country are agricultural laborers. Okay, now 2/5 of rural families जो गांव की families होती हैं, okay, वो ज्यादा से ज्यादा लोग किस काम में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं, अंडरस्टूड। अगर 5 में से 2% चिल्ड्रन देखा जाए तो वो लोग एग्रीकल्चर के काम ही करते हैं, क्योंकि जो मेन ऑक्यूपेशन जो होता है गांव में वो तो एग्रीकल्चर ही होता है, राइट, और उसकी बट उसके अलावा भी बहुत सारे और भी अदर्स काम होते हैं, राइट। सो देर आर सम हु हैव स्मॉल पॉट्स ऑफ लैंड व्हाइल अदर्स सच एज सुगना एंड ललन एंड लैंडलेस। तो गांव में ऐसे भी होते हैं कि कुछ कोई फार्मर्स तो बहुत ही बड़े होते हैं, कुछ के पास जमीन होती है बट छोटा सा ही होती है, राइट, उनके पास ज्यादा जमीन नहीं होती, कुछ स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और कुछ जैसे सुगना और ललन के केस में वो लोग के पास कोई भी जमीन नहीं है, वो लोग लैंडलेस है, अंडरस्टूड, वो लोग दूसरे की जमीन पे जाकर वो लोग काम करते हैं, क्लियर। नाउ नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर forces people to migrate, okay, now forces people to migrate to other areas in search of work. Migration take place during particular season, so not able to be in earn money throughout the year, okay, so गांव के लोग चिल्ड्रन अगर खेती का काम है तो वो सिर्फ कुछ ही महीने के लिए होता है, राइट, तो उसी समय उनको काम मिलता है, बट और रेस्ट ऑफ द मंथ वो लोग क्या करेंगे, वो लोग को तो खाली नहीं ना बैठ सकते चिल्ड्रन, ओके, घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, राइट, सो उनकी किस तरीके से, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ओके, दैट मीन्स दे माइग्रेट, अंडरस्टूड, दैट मीन्स दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो लोग अलग जगह चले जाते हैं काम ढूंढने के लिए, ओके, सो माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, सो कुछ पर्टिकुलर सीजन के समय पे जो लोग होते हैं गांव के, वो छोड़कर गांव दूसरी जगह चले जाते हैं काम ढूंढने की तलाश में, अंडरस्टूड, उनको काम तो चाहिए, राइट। So children, I hope you have understood. So children, today we are going to discuss till here only. So children, just wait. Yeah. So children, I hope
whatever we have discussed today, you have understood? Yes. So children, today we have discussed the three different types of occupation. One is primary occupation, secondary occupation, and tertiary occupation, right? So children, primary, it includes agriculture, mining, fishing, grazing, right? And even quarrying. So these are the primary occupation. Then secondary occupation, children, it includes manufacturing, right? And tertiary, it provides services, right? Trade and commerce, banking and insurance. And mostly in this chapter we have discussed about the primary occupation, right? And then we have discussed about one village also, right? That, and what was the name of the village? That was Dumri, and Dumri village is in Bihar, right? That also we have discussed. Then we have discussed one story of Sugna also, right? How she used to work on the field, right, of of Kashina land, right? And how much money she was earning, children? Per day she was getting 50 rupees, right? And even she used to work on other field also along with his husband, and his husband were getting more money as compared to Sugna, right children? So today we are going to discuss till here only, children. In the next class we are going to discuss the rest of the topic. Okay children, so children, please read the topic what we have discussed in our today's class. So children, goodbye, take care, stay home and stay safe, and keep